कर देख जो कामन भूली, वस्त अनूप न पाई। कहत कबीर न मैं घर मूसे, दसवें तत समाई। कहत कबीर न मैं घर मूसे, दसवें तत समाई। सैब सच्चे पातशाह ज़ाहरा जहूर हाजरा हजूर सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सतसंगी जनों, वड भागे खां सतगुरु जी दी गोद विच बैठ के शरदा प्रेम भावना दे नाल गुरमुख प्यारियां पासों आप जी ने सतगुरु जी दी बाणी आसा दी वार चौपाई साहब बाणी दे कीर्तन सरवण कीते। सतगुर दाता कृपा करे, अरदास करिए गुरु चरनां विच पढ़ी सुनी बाणी साडे हिरदे अंदर वस जाए। गुरबाणी अनुसार जीवन जिउण दा ढंग तरीका असी गुरु कोलों सिख लईए। सो आओ लड़ीवार गुर शब्द विचार, जिस विच आप जी ने श्रोमणी भगत भगत कबीर जी का पावन बचन सरवण कीता। इसे बचन नूं विचारण तो पहला गुरपते दी सांझ पाइए। प्यार व अदब सत्कार दे नाल इक्के वारी कहण ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर जी ने इस पावन बचन दे अंदर इस मन की गल कीती। रहाओ दे बंद विच किरपा कीती है। अब मन जागत रहो रे भाई, गापल होए कै जन्म गवायो, चोर मुसै घर जाई। साध संगत जागदे होए नूं उठाउण दी लोड़ नहीं है, लोड़ है सुत्ते होए नूं जगाउण दी। इत्थे भगत कबीर जी सुत्ते होए नूं जगा रहे ने, जागण दी लोड़ है। भाव अर्थ दे ने अब मन, हे मेरे मन हुण जागत रहो रे भाई। हे मेरे भाई, हे मेरे मन, तू हुण जागदा रही या तू हुण जागदा रह। क्यों एवें ना गापल हो के अपना जन्म गवा लई, एवें ना सारी जिंदगी सुत्तियां ही बिता दें। दो तरह की नींद हुंदी है साध संगत, दो तरह का सौना हुंदा है। एक मन करके सौना, एक तन करके सौना। अक्सर आपां वेखदे हां बंदा शरीर करके कोई 6 घंटे सौंदा है, कोई 8 घंटे सौंदा है। इस तरह ये शरीर करके सौना है। शरीर करके सुत्ता बंदा 6 घंटे बाद उठ जाएगा, 8 घंटे बाद उठ जाएगा। शरीर नूं उठाउण दे लई बंदा फिर कई यतन कई वसीले भी करता है। वेख्या तुसी बंदे ने जे 6 घंटे बाद उठना शरीर करके तो बंदा अपने कोल अलार्म लाउंदा है, या बंदा किसी नूं कह दिंदा है कि भी भाई मैनू इन्ने बजे उठा दी।
ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਠਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਢੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਾਰੇ ਵੇਖੀਏ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੀਂਦ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਐਸਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁਤਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? 3 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁਤਾ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖੁੰਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਦੀਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਕਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ
फिर ये मन जागेगा किवें? ये मन जिहड़ा है इनू मैं जगा किवें सकदा? सतगुरु जी फिर इसे बचन विच कहंदे आ, तेही गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुत्तियां रहण विखाणी। हजूर कहंदे जिन्हां ते गुरु दी किरपा हो गए, जिन्हां ते गुरु दी बख्शिश हो जाए, गुरु दी रहमत हो जाए, सतगुरु जी कहंदे ओ मन जाग जांदे आ। गुरु ते रोज साडे ते किरपा करदा है। गुरु रोज कहंदा जाग लेखो रे मना, जाग लेखो। कहाँ गाफल सोया, कित्थे तू गाफलता दी नींद विच सुत्ता होया है कि मेरे मना जाग लै। जगाउण दी लोड़ है मन नूं। गुरु हर राय महाराज जी नूं सिखां ने आख्या, सतगुरु जीओ मन जागेगा किवें? पहला सवाल किया, मन जागेगा किवें? गुरु हर राय महाराज कहन लगे, सिखो मन जागेगा बाणी दे नाल। सतगुरु किवें? जदों तुहाडे मन ने बाणी सुननी शुरू कर दिती, जदों तुहाडे मन ने कीर्तन सुनना शुरू कर दिता, जदों तुहाडे मन ने विचारां नूं ग्रहण करना शुरू कर दिता, इहदा मतलब है मन जाग रहा है। सतगुरु जीओ ये पता लग गया कि भी मन सुनेगा मन जागेगा। फिर भी मन विच एक तोखला जिहा है, मन सुन भी लेगा, मन बाणी पढ़ भी लेगा, फिर भी किवें पता लगे कि भी मन जाग गया? हजूर कहन लगे, सिखो एक गल चेते रखियो, बाणी पढ़दियां, बाणी सुनदियां, बाणी विचारदियां, कथा सुनदियां, जिस दिन ये सारे कर्म करदियां बाणी साडे अंदर नूं मिठी लगन लग पई, समझो मन जाग गया। क्योंकि हजे सानू बाणी मिठी नहीं लगदी, सानू हजे भी ऐ लगदा है कि भी बाणी साडे लई कौड़ी है। क्यों? बाणी कदी कौड़ी नहीं हुंदी साध संगत। कौड़ा ते चेते रखना वो पल हुंदा जिन्हों आपां खा ना सकीए। गुरबाणी कौड़ी नहीं, अपने मनां दे विच आपां बिठा लिया या सानू किसी ने कह दिता, हाँ एवें जरूर कह सकते हैं, बाणी कौड़ी नहीं, बाणी तिखी है। खन्ने हो तिखी, ये तो एहो जी तिखी है, जदों ये बोलदा है ना सतगुर कहंदे जिवें सूई दी नोक तिखी हुंदी है, बरछे दी नोक तिखी हुंदी है, तीर दी नोक तिखी हुंदी है, जदों वो वजदी है ना सट जरूर लाउंदी है, उहदी चोट बहुत लगदी है। बस जेड़ा उस चोट नूं सहार जांदा है वो बच जांदा है, जेड़ा उस चोट नूं नहीं सहारदा वो मर जांदा है। बस यही है, गुरबाणी चेते रखना साडे लई तिखा काम करदी है। जदों गुरु बोलदा है ना, ये बोल सानू तिखे वजदे आ, सानू लगदा है कि भी गुरु साडे लई कौड़ा है। नहीं, गुरु तिखा है। सतगुरु जी कहंदे ये तां भाई अमृत बाणी है। सतगुरु जी वो किवें? इन्ने असल दे विच तेरी अवस्था नूं बदल के रख देना, तेरे मन नूं बदल के रख देना। वो किवें? अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी। ਇਹਦੇ सुनन दिन वेखो अमृत वर्गी बाणी क्या सतगुरु जी ने इनू अमृत है। ये बाणी अमृत की हुंदा है? मिठा हुंदा है। सतगुरु कदे भी चेते रखना कौड़ा बोल नहीं बोलदा। आपां ते बचन पढ़दे हां गुरु बारे, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी ओ कदे न बोले कौड़ा। वो तो कदे भी कौड़ा नहीं बोलता। सानू लगता है कि भी गुरु कौड़ा बोलता, पर नहीं, गुरु सदा जदों बोलता मिठा बोलता। इस करके गुरु हर राय महाराज जी ने आख्या, सिखो जिस दिन बाणी पढ़दे हां, जिस दिन कीर्तन सुनदे हां, जिस दिन कथा करदे हां, कथा सुनदे हां,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਉਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਮਰਦਾ। ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੋਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗਦਾ ਰਹੀਂ। ਗਾਪਲ ਹੋਏ ਕੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ। ਐਵੇਂ ਗਾਪਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਾ ਗਵਾ ਲਈ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਐਖੇ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਪੀ ਜਾਏ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਹੀ ਆ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਭਲਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਆ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰ ਹੈ ਬਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਡਭਾਗੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਡਭਾਗੇ ਕਿਉਂ ਆ ਭਲਾ ਅਸੀਂ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਵਡਭਾਗੇ ਤਾਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਐਸੇ। ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਪਲ ਹੋਏ ਕੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ। ਐਵੇਂ ਗਾਪਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ।
चोर मुस्सै घर जाई, चोरां ने तेरे घर नूं लुट लैना। दिने बहुत घट जिहड़े घर है वो लुट्टे जाते हैं, चेते रखना। चोरियां जदों भी हुंदियां ने रात दे हनेरे विच हुंदियां ने। चोर जदों भी चोरी करदा ना साध संगत, रात दे हनेरे विच करदा है। लुटेरे जदों भी सड़कां ते लुटदे आ, रात नूं लुटदे आ। ते मैं एक बेनती तुहाडे चरनां च करां, दो बंदे रात नूं जागदे हुंदे आ। दो बंदे, तुसीं आखोगे वो दो बंदे कौन ने जिहड़े रात नूं जागदे आ? ते दोवां दे जागण विच बड़ा फर्क है। दोवां दे जागण विच बड़ा फर्क है। की फर्क है? रात नूं चोर जागदा है, पर चोर जागदा है किसे नूं लुट्टण दे लई। चोरी कर एक कर्म बन गया, उहदा जागना किसे नूं लुट्टना। पर रात नूं साधु भी जागदा है, भगत भी जागदा है, पर चेते रखना राम दे नाम नूं लुट्टण दे लई जागदा है, किसे नूं लुट्टण दे लई नहीं वो जागदा। दोवां विच फर्क है। बस गुरु सानू जगाउंदा है। गुरु कहंदा तू भगत दी तरह जाग, तू साधु दी तरह जाग। जिद्दण तू भगत दी तरह साधु दी तरह जाग गया, उस दिन चेते रखी बाहरी तौर ते जिहड़े चोर ने वो ते जिहड़े अंदर बैठे पंज चोर ने उन्हां तो भी लुट्टण तो तू बच जाएगा। फिर तू लुट्टिया नहीं जाएगा। ते खजूर कहंदे आ चोर मुस्सै घर जाई, वेखी किते चोरां ने तेनू लुट लिया, मुड़ के उन्हां अपने घर चले जाना, तू बर्बाद हो जाना। पहलियां पंक्तियां विच हजूर कहंदे आ खट नेम कर कोटड़ी बांधी। खट दा अर्थ हुंदा है 6, नेम दा अर्थ जिहड़ा हुंदा है वो है चक्कर। भगत कबीर जी कहंदे आ खट नेम भाव पंज ज्ञान इंद्रे किहड़े आ जी? आपां वेखदे आ अख कन नक पैर त्वचा, इस तरह मन्ने गए पंज ज्ञान इंद्रे। ते छेवां की है? खटदार भाव 6 हुंदा है, इहदे विच पंज ज्ञान इंद्रियां दी गल ते 6वें मन की गल कीती गई है। वैसे जदों तुसीं जोगियां दे बारे पढ़दे हो, जोगियां दे खट नेम की गल आउंदी है, भाव सवासां नूं उत्ते चढ़ा लैना, ला लैना, इस तरह का कुछ मन्निया जाता है, खट नेम मन्ने जाते हैं। पर इत्थे जिहड़ी गल कीती गई है प्रोफैसर साहब सिंह मुताबक जिहड़ी है वो चेते रखना पंज ज्ञान इंद्रे ते 6वां जिहड़ा वो मन की गल कीती गई है। क्यों भला? ये तां कीती गई क्योंकि जिहड़ा शरीर की रचना है ना वो पंज तत्तां तो मन्नी गई है, जिहदे बारे बाणी ने ये गल सानू समझाई है। आपां एक पढ़ते हैं बचन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का, उत्थों समझ पैंदी है कि भी इत्थे पंज तत्तां की गल है। जिवें आपां पढ़ते हैं पांच तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। पंज तत्तां तो बने हुए शरीर के अंदर पंज ज्ञान इंद्रे ने, पंज कर्म इंद्रे ने, पंज विकार ने, पर इत्थे पंज ज्ञान इंद्रियां की गल है। पंज ज्ञान इंद्रियां की गल तां कीती भगत कबीर जी ने क्योंकि जेड़े पंज ज्ञान इंद्रे ने ना उहदे विच अख कन नक मूँह ते जीभ, ये पंज ज्ञान इंद्रे मन्ने आ। हुण इन्हां पंजां ने सानू बाहरी ज्ञान देना है ते इन्हां दे उत्ते बैठा है मन। अगे जाके फिर भगत कबीर जी कहंदे खट नेम कर कोटड़ी बांधी। 6 चक्रां दी एक परमात्मा ने निक्का जिहा घर बन दिता। भाव बस्त अनूप बीच भाई ते विच की पा दिता? वो कीमती वस्तु, भाव जिहदी उपमा नहीं की जा सकती, जिहड़ी उपमा तो बयान
भगत जी कहते आ, कुंजी कुलप प्राण कर राखे करते बार ना लाई। किन्नी परमात्मा ने कृपा की। कह लगे जंदरे चाबी दे थले इस जोत नूं रख के परमात्मा ने एक वार भी, जिन्हों गुरु अमरदास महाराज कहते हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा रखाया वाली गल। भाव उस परमात्मा ने जंदरा चाबी ला के इनू अंदर टका दिता, भाव इस रचना नू रच दिता। हुण इहदे थोड़े जे अर्थां नू भावां नू समझिओ। भगत कबीर जी कहंदे आ, अंदर ज्ञान इंद्रे ने पंज, कन्ना राही बाणी सुननी, जिहदे बारे गुरु अमरदास महाराज कहंदे आ, ए श्रवणो मेरेओ सच है सुनना नो बिठाए। इन्हां अखां दी गल गुरु अमरदास महाराज करदे आ, ए नेत्रो मेरेओ हर तुम्हें जोत धरी। सतगुरु जी कहंदे इन्हां नूं जगाउणा सी। भाव किवें? गुरबाणी पढ़ के, गुरबाणी सुन के, गुरबाणी दे दर्शन करके इन्हां नूं जगाउणा सी। वो गल वखरी है। आपां इन्हां नूं जगाउण दी बजाए इन्हां नूं भी सवालिया। सो अगे भगत कबीर जी कहते आ, पंच पहरुआ दर मह रहते। पंज पहरेदार, वो पंज पहरेदार उही जिन्हां दी गल पहला भगत कबीर जी कर रहे ने। पंज ज्ञान इंद्रे, भाव वो पंज पहरेदार इस घर दे बाहर रहिंदे आ। ये अखां घर दे बाहर ने, ये नक घर दे बाहर है, ये कन घर दे बाहर ने। ये पहरेदार ने साडे शरीर दे। क्योंकि पहरेदार जिहड़ा हुंदा है ना, उन्हें घर नूं बचाउणा हुंदा है। हुण आपां पहरेदार क्यों रखदे आ? पहरेदार रखदे आ कि भी बाहरों कोई भी ताकत साडे घर विच ना आवड़े। यही हुंदा है ना, कोई वार ना करे। पर जदों पहरेदार ही आकी हो जाए, जदों पहरेदार ही आकी हो जाए, फिर घर नूं लुट्टण तो कोई बचा नहीं सकदा। एक ही कहानी साडे शरीर दे नाल है। भगत कबीर जी कहते पंच पहरवा दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा। पंज पहरेदार साडे घर दे बाहर रहिंदे आ, पर कहन लगे ये भी विश्वास दे पात्र नहीं, इन्हां ते भी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? मन पिछे लग के इन्हां ने भी अपना भरोसा गवा लिया। अखां ने चंगा वेखना नहीं। हुण मन पिछे लग के की इन्हां अखां ने चंगा वेखिया? गुरु ने सानू समझाया सी, परतरै रूप ना पेखै नेत्र, कि इन्हां अखां ने अपने नेत्रां दे नाल पराए तन नूं, पराए धन नूं वेखना बंद कर दिता है। हुण ये पहरेदार ही जदों अखां रूपी आकी हो जाण ते चेते रखना उत्ते शरीर दा बेड़क ते होएगा ही ना। हुण इन्हां कन्नां दे नाल ए श्रवणों मेरेओ सच है सुनने नूं पठाए वाली गल सी। जदों इन्हां कन्नां दे नाल, इन्हां पहरेदारां दे नाल जदों निंदा चुगली इहो जिहियां चीज़ां आपां सुनन ते लग गए कि ये पहरेदार घर बचा सकते आ, फिर साडा नहीं बचा सकते। क्यों? पहरेदार आकी हो गया। इस मूँह दे राही जिहदे राही असी चंगे बोल बोलने आ, जित बोले पत पाई सो बोले प्रवान होना सी, उन्हां दे राही असी किसे नूं गालां कढीए, किसे नूं मंदा बोलीए। सतगुरु जी कहंदे आ, फिर ये जिहड़ा घर है ना, ये भी तेरे घर नूं बचा नहीं सकदा पहरेदार। क्यों? ये भी तेरे तो आकी हो चुका है। सतगुरु जी ने सारियां दियां उदाहरणां बाणी विच दित्तियां ने। कल्ले कल्ले ज्ञान इंद्रे की गल कीती है। कहन लगे जदों ये ज्ञान इंद्रे आकी हो गए फिर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मन दा तेरे उत्ते चेते रखना है भी खोना। इन्हां पहरेदारां नूं मारना है, खत्म करना है। ते भगत कबीर जी कहंदे पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा। इन्हां ते भरोसा नहीं, इन्हां ते विश्वास नहीं किया जा सकता। चेत सुचेत चित होए रहो। ये भाई तू हुशियार होके रह,
तू परमात्मा नू चेतदा रह, परमात्मा नू जपदा रह, तो लै प्रकाश उजारा। जदों तक तू चेतेगा, जदों तक तू सिमरेगा, चेते रखी तेरे अंदर परमात्मा की जिहड़ी जोत दा उजारा होया ना, उहदे बारे तेनू पता लगदा रहेगा, समझ पैंदी रहेगी। हुण तेनू समझ नहीं है, पता नहीं है कि भी मेरे अंदर किन्नी कु कीमती चीज़ पई हुई है। सतगुरु जी कहते प्रकाश उजारा, फिर उहदा उजियारा होएगा। उजियारा भी एवें नहीं होना, भाव उहदा प्रकाश एवें नहीं होना। गुरु तो बिना प्रकाश नहीं हो सकता उहदा। आपां सोहला साहब बाणी पढ़दे हां, जोत तां टिकी है, पर उस जोत दे बारे जे आपां आखीए असी अपने आप समझ लवांगे, अपने आप समझण वाला तो विषय ही नहीं है। साध संगत आपां एक बचन साझा कीता है, सब मैं जोत जोत है सोए तिसदा चानण, सब मैं चानण होए। अगे हजूर ने आख्या गुर साखी, जिहदा अंदर उजियारा होना है ना, जिहदे बारे पता लगना है, वो गुरु की सिक्ख्या तो बिना नहीं पता लग सकता। इस करके जे उहदे बारे समझना है, फिर गुरु की सिक्ख्या का होना बड़ा जरूरी है। हजूर कहते गुर साखी, जोत प्रगट होए, फिर उन्हें प्रगट होना है, भाव उहदे बारे समझ लगनी है। तो इत्थे हजूर अगे कहते हैं, नौ घर देख जो कामन भूली। ये जिहड़ी जीव आत्मा है, भाव नौ घर, दो अखां दो कन, ये नक दो, ये छिद्र, मूँह, गुदा, इस तरह 9 दरवाजे मन्ने गए आ। भाव कहन लगे भगत कबीर जी कहते 9 घर देख, इन्हां 9 घरां नूं देख के जिहड़ी कामन सी, भाव जीव आत्मा सी, वो भुल गई, वस्त अनूप ना पाई। ते जिहड़ी विच वस्त अनूप पई सी, जिहदी उपमा नहीं सी हो सकती, जिहड़ी उपमा तो परे सी, उहदे बारे कुछ जान ही नहीं पाई, उहदे बारे समझ ही नहीं सकी। ते हजूर कहन लगे जदों समझ ना होवे ना, फिर समझ लेना चाहिए। फिर कदी भी अपने मन दे पिछे नहीं तुरना चाहिए। असी अपने मन दे पिछे तुरदे हां ते चेते रखना कुछ भी समझ नहीं पाउंदे, पर जदों असी गुरु दी मत लैके तुरदे हां, 2 चीज़ां ने चेते रखना, एक मन मत ते एक गुर मत, जिन्हों आपां कह दिंदे आ गुरमत। एक मन मत ते एक गुरमत। मन की मत वो है जदों असी अपने तौर ते आप तुरदे, अपने मन की मर्जी करदे आ। इनू हजूर कहंदे आ मन की मत त्यागो हर जन, हुक्म बोझ सुख पाई है। जे तू चाहुंदा है कि मेरे अंदर आनंद खेड़ा खुशी बजी रहे, मेरे अंदर वो टिका बनया रहे, फिर तू अपने मन की मत नूं त्याग। यह मन की मत, मन दे पिछे तुरदा कौन है भला? मन दे पिछे वो तुरदे आ जिन्हां बारे सतगुरु जी कहंदे आ साकत बंदे, मनमुख बंदे, मूर्ख बंदे, निंदक, इहो जे नाम जिन्हां नाल जुड़दे आ ना, वो बंदे अपने मन की मत लैके तुरदे आ। ते जेड़े गुरु दे कोल आ जांदे आ, सतगुरु जी कहंदे आ वो फिर गुरु की मत लैके गुरमत दे धार्मिक होके तुरदे आ, वो फिर गुरु तो कदी बाहर नहीं हुंदे। वो तां जो गुर कह, जेड़े गुरमत नूं समझदे आ, भाव गुरु की मत ते चलदे आ, ओही ये गल कहंदे आ, जो गुर कह सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। उन्हां लई की बन गई गुरमत, भाव गुरु की मत उन्हां लई श्रेष्ठ बन गई। इस करके कहंदे आ, हे भाई तेरे अंदर एक वस्त अनूप है, ये तेरी मन की मत दे नाल नहीं तेनू पता लगनी, ये तेनू गुरु की मत दे नाल समझ आएगी। इसे करके हजूर ने फिर बाणी विच आख्या, गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिनाबो डूबे सियाने। मैं सियाने सियाने, वैसे गुरबाणी विच एक बचन आउंदा साध संगत, जेड़ा बंदा अपने आप नूं बड़ा सियाणा समझदा होवे ना, कहंदा होवे कि मैं बड़ा सियाणा, मेरा सियाणियां च नाम आउंदा है,
गुरु नानक पातशाह पहली पौड़ी दे अंदर ही उन्होंने कह देंदे आ, सैस सियाणपा लख होवे तां एक ना चले नाल। जिन्नियां मर्जी सियाणपावां होण तेरियां, तो जिन्ना मर्जी अपनी सियाणप नाल चलण दा यतन करी, एक कदम नहीं चल पाएगा। एक बचन फिर ख्याल विच रखियो, जेड़ा अपने आप नूं बहुता सियाणा कहंदा है, सतगुरु जी कहंदे आ मैं सियाणे तो सियाणा बंदा खूह विच डिगदा वेखिआ। मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, अपने हंकार विच आके अपने आप नूं सियाणा कहण वाला हजूर कहंदे अत सियाणा पवै खूह। मैं खूह विच डिगदा वेखिआ। पर चेते रखना, जेड़ियां अपनियां सियाणपावां नूं त्याग के, अपनियां चतुराइयां नूं त्याग के, अपना आप त्याग के गुरु वल आ जांदा है, चेते रखना वो कहंदा है कि भी सियाणप चतुराई मेरे अंदर कुछ भी नहीं, सारी सियाणप तां गुरु दे कोल है। मैं बेनती करदा सां, हजूर कहंदे आ वेखी किते भगती तो बिना मैं सियाणे तो सियाणे बंदे भी डुबदे वेखिआ। क्यों? गुरु दी मत नहीं उन्होंने लई, गुरु दी बाणी दे धारनी नहीं होए। इस करके हजूर ने आख्या गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिना बो डुबे सियाने। सियाणा बन, सियाणा भाव गुरु दी सियाणप दे नाल सियाणा बन, चंगा इंसान बन, अपने अंदर दी खवानियत नूं बाहर कढ, अपने अंदर दी शैतानियत नूं बाहर कढ, जे तू सियाणप लैना चाहुंदा है। इस करके हजूर कहंदे आ फिर तेनू जदों सियाणप गुरु वाली मिल गई ना, फिर वस्त अनूप पाई, फिर वो जिहड़ी कीमती वस्तु तेरे अंदर टिकी हुई है ना, फिर तेनू प्राप्त हो जाएगी। अगे फिर लास्ट विच भगत जी कहन लगे, कहत कबीर नवें घर मूसे, दसवें तत समाई। गुरु दी सियाणप दे नाल जदों तुरे, कहन लगे जेड़े 9 घर सन, भगत कबीर जी आखदे हन 9 नवें घर मूसे, भाव 9 घरां दे विच ठगिया जाण वाला बंदा जदों उहनूं समझ पै गई, 10वें तत समाई, फिर वो 10वें भाव उस परमात्मा ने जिस नूं गुप्त रखिया होया उहदे विच समा जाएगा। भाव किहड़ा? 10वां की है? साडा मन। भाव उहदे बारे समझ आ जाएगी, मत आ जाएगी। सो भगत कबीर जी ने इस पावन बचन दे अंदर साडे मन नूं जगाउंदिआं, साडे मन नूं हलूणा दिंदिआं सानूं वो बातां समझाइयां जिन्हां दे बारे सानूं अज समझण दी सानूं लोड़ है। इस करके भगत कबीर जी ने आख्या वेखी किते हुण सुत्ता ही ना रह जाई, जागण दा वेला है, जाग लेहो रे मना, जाग लेहो, जागदा रही, क्योंकि जागियां दे घर सलामत रहिंदे आ, सुत्तियां दे घर अक्सर लुट्टे जांदे आ। जे तू सुत्ता ही रह गया, चेते रखी लुट्टिया जाएगा, ठगिया जाएगा। पर जिस दिन तू मन करके जाग गया, ना तू लुट्टिया जाएगा ना ठगिया जाएगा। क्यों? सतगुरु गुरु नानक महाराज जी कहते हैं, जिथे मन जाग जाता है ना, जिथे अंदर जाग जाता है, उथे चेते रखना कदी भी कुछ लुट्टिया नहीं जाता, उथे लुट्टियां हुई चीज़ों नूं भी बचा लिया जाता है। सो भगत कबीर जी का यह पावन बचन साडे हिरदे अंदर वस जाए, बचनानुसार सानू जिउणा आ जाए। इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करियो। भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी। राम कली